ہلو ہلو، السلام علیکم. جی الحمد اللہ خیریت. ہاں الحمدللہ. بتائیے نثار بھائی. ہاں وہ کل آپ فون کیے تھے نا تو میں راستے میں تھا، پھر اس کے بعد چلا گیا تھا پروگرام میں. اچھا ہو گیا پروگرام؟ بیٹھا تھا تو میں کہا بات کر لیں. جی پروگرام ہو گیا بڑھیا. ہاں پروگرام تو اچھے سے ہو گیا، وہیں سے واپس آیا. عید میلاد النبی کے اوپر کوئی میرے بھائی حدیث ہو تو بتائیے، تو اگلے سال سے ہم لوگ بھی بنائیں. جی بہت ساری حدیثیں انشاءاللہ میں پیش کر سکتا ہوں. بھائی ایک بتا دیجیے. جی صرف ایک بتا دیجیے کوئی. تو آپ کس سے یعنی چاہتے ہیں کس حدیث سے آپ کو حوالہ دے دیں؟ نہیں، جو حدیث میں آیا ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ 12 ربیع اول کو سالانہ عید میلاد النبی یہ مناؤ، اور جو نہ منائے وہ ابلیس سے شیطان ہے. اچھا تو وہ تو بہرحال میں اس بات میں متفق ہوں، لیکن اگر یہ بات ہے کہ سرکار نے اس کا حکم دیا ہو وہی کیا جائے تو بھائی نبی جو بتائیں گے وہی دین ہے نا. تو ایک منٹ آپ پہلے یعنی اپنے بات کا جواب خود سن لیں. جی بہت سارے ایسے احکام ہیں کہ جن کا سرکار نے حکم نہیں دیا ہے پھر بھی لوگ کرتے ہیں. نہیں، ایسا کوئی کام نہیں ہے دین میں. اچھا ایسا کوئی احکام ہے ہی نہیں کہ جس کا سرکار نے حکم نہ دیا ہے دین میں جملہ میرا ایک میرے بھائی آپ ایک دم اچھے سے اپنے دماغ میں ڈالیے گا. دین میں نے کہا ہے. ایک منٹ پہلے آپ سنیں. جیسے میں نے دیکھا ہے مدرسوں میں، چاہے وہ دیوبندی جماعت کے ہوں یا کسی کی جماعت کے ہوں، سنی جماعت کے، سب مدارس میں جب بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں دستار بندی ہوتی ہے تو ان کو سند دیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی دستار خوشی ہوتی ہے. تو یہ دین نہیں ہے، دنیا ہے. یہ دنیا کا فنکشن ہے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو. اس سے کوئی دین کا لینا دینا نہیں ہے. آپ اسی سے سمجھ گئے کہ جب بتاؤ عزت افزائی تو یہ آپ کہیے نا کہ عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو منانا یہ ایک دنیا کا کام ہے، دین کا کوئی لینا دینا. آپ سنیں پہلے آپ سنیں. یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا نظام ہے کہ جب ایک بچہ حافظ قرآن ہو تو اس کی عزت افزائی کے لیے جلوس ہو سکتا ہے، میلاد ہو سکتا ہے. جلوس کا ہوا میلاد کا ہوا بھائی، آپ کہاں کی بات کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ جی کہاں جلوس کہاں ہوتا ہے بھائی دستار بندی میں؟ ارے جلسہ کو جلوس نہیں کہہ سکتے کیا؟ نہیں، جلوس الگ ہوتا ہے، جلسہ الگ ہوتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، میں جلسہ ہی مان لیتا ہوں. جلسہ بولے تو دیکھیے اردو میں اس کو عام طور سے بولتے ہیں جلسہ، اجتماع، ٹھیک ہے، پروگرام، ایونٹ. یہ تو نام ہے نا. مقصد اس کا کیا؟ مقصد یہ ہے کہ بچے آج اللہ کا کلام ہے اس کو یاد کر لیا، ان کو سند دی جا رہی ہے، ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، ان کے ماں باپ کو اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے، عالم دین آتے ہیں، ان کے ماں باپ کو میرے بھائی خوشی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ الحمدللہ بھائی وہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا. تو یہ ایک فنکشن ہے. اصل کیا ہے اس میں؟ اصل یہ جو اس نے اللہ کا کلام کو میرے بھائی یاد کیا، یہ اصل ہے. جیسے اولاد حافظ قرآن ہو تو ان کے ماں باپ کو بلائیں، یعنی لوگوں کو بلائیں، ایک سیکشن کیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم چلے ان کی عزت افزائی ہو جو حافظ قرآن ہوئے نا. ہاں یہی مسئلہ تو ہے. تو پھر ایسے ہی آپ سیدھے سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب سرکار آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت دی ہوئی چیز ہے، جیسا کہ آپ قرآن میں خود دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ہمارے گھر کا تو بشارت ہوئی، تو یہ بشارت کو 12 ربیع الاول کو صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں نہیں منایا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بشارت دی ہو جس نبی کے بارے میں، وہ نبی آئے تو اس نبی کی خوشی میں نہیں جلسہ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا نا. لیکن تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو بھیا یہ بھی فتوا دیجیے کہ پھر دستار بندی. فتوا تو میرے بھائی تمام لوگوں نے دے دیا ہے نا، اللہ کے نبی نے دے دیا ہے. کل بدعت ضلالہ. دین میں ہر نیا کام جو ایجاد ہوتا ہے وہ بدعت ہے. لیکن پڑھتے تو اس کو سمجھتے نہیں. پڑھتے اس حدیث کو آپ لوگ بہت ہیں لیکن سمجھتے نہیں. چلیے آپ ہی سمجھا دیجیے یہ والی حدیث میرے بھائی. پہلی بات آپ نے کل ایک بات کہا تھا، وہ میں گاڑی چلا رہا تھا اس سے تھوڑا میں پریشان تھا. دوسرے پارے کی جو آیت آپ نے پڑھ کے بتائی تھی نا، وہ کیا دودھ کے مسئلے پر یعنی رضاعت کے مسئلے میں کیا کہا تھا آپ نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ارے وہ تو آپ کو میرے بھائی ہم نے الزامی آپ کو مطلب بھائی وہ جواب دیا تھا، ٹھیک ہے. جی وہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. میلاد النبی کی ایک صحیح حدیث پیش کر دیجئے بہترین، تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. کیونکہ ہم بھی سوچ رہے گناہ گار ہو رہے بھائی کہ جو نہ منائے وہ ابلیس ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے. ہلو دودھ پلانے والا جو مسئلہ ہے وہ یہ میں بتا رہا تھا، ہدایہ میں آتا ہے
ठीक है, कि हनफी मसलक में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, ठीक है, हिदाया में जिल्द 1 सफ़ा नंबर 232 पे, कि जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को वो 2.5 साल दूध पिलाएंगे। और अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 200 गालिबन उसमें आता है 33 में, ठीक है, 233 में, कि जो बच्चों को जो उनकी माएँ हैं वो 2 साल दूध पिलाए। जी, यानी कि दूध पिलाने की जो मेरे भाई मुद्दत है माओ के लिए वो 2 साल है। अच्छा, तो इससे इमाम आजम ने शादी की 2.5 साल बताए। हाँ, तो उनसे चूक हो गई ना, तो यही तो हम लोग कहते हैं कि जो मेरे भाई इमाम है वो मासूम नहीं है, इसलिए उनकी अंधी तकलीफ एकदम ना की जाए। वो बात ठीक है, वो इमामों को हम मासूम नहीं मानते हैं। मासूम सिर्फ या तो फरिश्ते हैं या फिर अंबिया। जी, तो फिर उनसे क्या हुक्म बनेगा इमाम आजम पर? उनसे हुक्म ये बनेगा कि उससे ये साबित होता है कि जो इमाम है गैर नबी है, उससे भी बड़े बड़े मसाइल में गलती हो सकती है, तो गोया उनकी जो मेरे भाई तकलीद है वो अपने ऊपर वाजिब उसको ना समझा जाए। जो बात उनकी मेरे भाई किताबो सुन्नत से साबित हो उसको इत्तबा के तौर पे उसको मान लिया जाए, जो ना साबित हो उसको छोड़ दिया जाए। जैसे एक बात मेरी भी सुन लेते आप, जी बताइए। क्योंकि मेरी आदत है जब मैं बोलता हूँ, बोलिए बोलिए। ऐसा है, जैसे आपने कहा कि यदि कुरान में 2 साल का हुक्म है और इमाम आजम अबू हनीफा ने 2.5 साल लिखा उसको। जी, तो इसके अलावा और किस इमाम ने नहीं लिखा है? आप ऐसा है कि आप तफसीर मगरी पढ़ें, पढ़ें, इसके अलावा और दीगर तफासीर में है कि इमाम मालिक ने भी इसमें ज्यादती की है, तो फतवा उनसे भी बनता है। तो अगर मेरे भाई अगर आप भाई अगर हनफी ना होते मालिकी होते तो हम आपसे उस पर बात करते, आप तो हनफी है ना। नहीं, वो बात ऊपर आते हैं। लेकिन मसला ये है कि आज तक आपकी जमात से किसी ने फतवा इमाम मालिक के खिलाफ नहीं लगाया कि इमाम मालिक ने, जबकि उन्होंने भी कहा है कि कुरान में 2 साल है लेकिन इसमें ज्यादती हो सकती है और ज्यादती करनी चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको मेरे भाई हनफियत को छोड़ के आपको बनना पड़ेगा मालिकी मसलक में। अब सुनो एक मिनट, जैसे उन्होंने ज्यादती की, चलो ठीक है, इमाम आजम अबू हनीफा ने ज्यादती की, हाँ, दोनों इमाम। लेकिन आप जो है एक मेरे तरफ से एक मशवरा है कि जो लफ्ज कामिलैनी का जिक्र है कुरान में, तो कामिल का मतलब समझते हैं आप? बताइए, समझाइए। अरबी लफ्ज है, जब तफसीर की किताब पढ़ेंगे, क्योंकि वो आप कल ही बता चुके हैं कि मैं पढ़ा लिखा आलिम नहीं, सिर्फ उलमा से सुना हुआ आलिम हुआ, तो इसीलिए हाँ आप सुने कि जो वहाँ कामिलैन का मकसद लफ्ज कामिल जो है वो ये हुक्म नहीं है कि सिर्फ 2 साल तक ही दूध पिलाया जाए, बल्कि वो हुक्म इसलिए कि 2 साल से कम यानी इस मुद्दत में कोई काहिली न करे, वरना फिर बच्चों को जो चीज यानी माँ के दूध से जो ताकत मिलती है वो और चीजों में नहीं है। इसलिए कहीं कोई 2 साल से कम न कर दे, इससे कम का हुक्म नहीं है, वहाँ ज्यादती हो सकती है। ये वहाँ कुरान का मकसद है, जैसा कि मैं बहुत भाई आप मतलब कौन है, देवबंदी तो है नहीं, बरेलवी है ना? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पक्का बरेलवी हूँ। हाँ, पक्का बरेलवी है ना। तो बहार शरीयत उसके मेरे भाई जिल्द 1 और उसका हिस्सा नंबर 7 और सफा नंबर 19 को उतरा हुआ है, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल की मुद्दत तक ही जो माँ है, ठीक है, या कोई औरत है, वो अपने बच्चों को दूध पिला सकती है। 2 साल से ज्यादा दूध पिलाना ये मेरे भाई नाजायज है। और आप बता रहे हैं कि मेरे भाई ये 2 साल कुरान में है लेकिन वो ज्यादती के लिए मना नहीं है। यहाँ तो साफ साफ मेरे भाई बहार शरीयत में कहा जा रहा है, बरेलवी जो आलिम है बाकायदा बहार शरीयत पता है, ये फिका हनफी की भाई एक आमतौर पर इसको बोल सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि फिका हनफी का ये सार है। और बहार शरीयत में बड़े बड़े जो बरेलवी मुफ्ती हैं उनके फतवे मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि 2 साल से ज्यादा दूध पिलाना ये मेरे भाई नाजायज है, चाहे मेरे भाई बेटा हो चाहे बेटी हो, आपके चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, 2 साल तक आपको दूध पिलाना है। 2 साल के बाद उसका दूध मेरे भाई छुड़वा देना है। ज्यादा दूध अगर कोई उसको पिलाता है तो भाई ये बिल्कुल नाजायज है। एक मिनट, पहली जिल्द में कौन सा बताए थे भाई? बहार शरीयत जी, उसकी मेरे भाई जिल्द नंबर 1 और हिस्सा नंबर 7
اور صفحہ नंबर 29 और 19। अच्छा, जिल नंबर 8 बता रहे हैं, यानी 1 अच्छा, जिल नंबर 1। खैर चलिए, तो माँ के दूध पिलाने का मैटर है, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। अब ना 2 साल के आप बच्चे हैं ना हम बच्चे हैं, ठीक है। अब जब इंशाल्लाह बच्चा अच्छा होगा किसी का तो उसको बता दिया जाएगा। 1 मिनट, हिस्सा कौन सा बताएं? भाई हिस्सा नंबर 7। हिस्सा नंबर 7, वो दूसरी इसमें चाहिए था। चलो ठीक है, वो भी बाहर शरीफ मेरे वो आप देख लीजिएगा। मसला ये भाई देखिए, हमें सबसे बुरा क्या लगता है, अब आपको बताया प्यारे भाई, ठीक है। कोई नबी की पैदाइश पे मेरे भाई वो जलसा लगाए, झंडा लगाए, डीजे बजाए, केक काटे, या मेरे भाई जश्न मनाए, या इसको ईद का नाम दे दे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। हम खाली उसको रोकेंगे, समझाएंगे। मसला तब खराब हो जाता है जब सामने वाली पार्टी कहती है कि जो ईद मिलादुन नबी को ना मनाए वो शैतान है, इबलीस का साथी है। तो उसके लिए बड़ी मेरे भाई मजबूत दलील चाहिए बरेलवी की तरफ से, जिससे साबित हो जाए कि जिन जिन लोगों ने 12 रबी अव्वल को ईद मिलादुन नबी को नहीं मनाया है वो सब मेरे भाई शैतान के साथी हैं, इबलीस है। तभी तो हम लोग मनाएंगे अगले साल से। जिसने आपको खबर दी हो तो मेरा जो बयान भाई, हर बरेलवी आलिम कहता है कि सारे जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाय इबलीस के। तो ये बयान नहीं करते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने अपने हबीब को पैदा किया, इस दुनिया में भेजा, तो कायनात का हर एक फर्द यानी हर एक जर्रा खुशी मनाया, लेकिन कौन सी तारीख को भेजा जी? कौन सी तारीख को भेजा? मैं तारीख का नाम नहीं हूँ, तारीख में इख्तलाफ है। तो तारीख में इख्तलाफ है तो 12 रबी अव्वल को फिक्स क्यों कर लिया गया? फिक्स इसलिए किए कि हमारे मुजद्दिद आजम और हुजूर आला हज़रत ने 12 को लिखा, इसलिए 12 रबी अव्वल हम पसंद करते हैं। और हमारे जमात के उलमा तो इसमें गौसे आजम की शान में तौहीन हो गई कि नहीं हो गई? जी, जो गौसे पाक हैं, गौसे आजम है, जिनकी बरेलवी लोग फातिया करते हैं, नियाज करते हैं, 11वीं शरीफ मनाते हैं, उनकी शान में तौहीन मेरे भाई हो गई ना। सबसे गौसे आजम, हेलो बेटा, आप समझो मेरे कि आप किसके सामने भाई, उनकी शान में तौहीन हो गई ना। हाँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में बाकायदा चीज को नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख पैदाइश है वो है 10 मुहर्रम, और बरेलवी लोग ने 12 रबी अव्वल खास कर दिया। गोया माज़अल्लाह गौसे आजम की शान में तौहीन कर दी। इसके अलावा और सरकार में दलील है जो मजबूत तरीन दलील है। तो क्योंकि जिस तारीख में भाई थोड़ा जोर से बोलिए, नेटवर्क में आके। तारीख का जो मसला है, जब तारीखी बात से इख्तलाफ हो तो उस पर बहस नहीं किया जाता है। जहाँ इजमा नजर आए उसी पे अमल कर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रिवायत नहीं, ये तारीख। तो ये बताइए, गौसे आजम क्या इजमा के मुनकिर थे? जी नहीं, वो इजमा के मुनकिर क्यों होंगे वो? तो भाई मतलब ये बताइए, आला हजरत ज्यादा जानते थे या मेरे भाई जो गौसे आजम वो ज्यादा जानते थे? पहले का कौन है? जानने की बात है तो हम एक दूसरे को फजीलत की अगर बात आएगी तो उसमें मेरी क्या औकात है कि मैं जबान खोलूं। जहाँ तक बारगाह इलाही में गौसे आजम है तो वो अपनी जात में है, और हुजूर आला हजरत को जो मिला है वो गौसे आजम का सदका है। निस्बत गौसे आजम से जाते हैं। तो आपके आला हजरत का ही फतवा मौजूद है कि जो गौसे आजम का हम अकीदा ना हो वो बातिल है। तो अकीदा, अब गौसे आजम का अकीदा ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैदा हुए 10 मुहर्रम को, और बरेलवियों का अकीदा ये है कि वो 12 रबी अव्वल को पैदा हुए। और आला हजरत ने फतवा रज़विया में उतारा है कि अल्लाह के नबी की जो तारीख पैदाइश थी वो थी 8 रबी अव्वल। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी सालाना करने नहीं चाहिए। जिसको नबी से मोहब्बत है, जो नबी का बहुत बड़ा आशिक होने का दावा कर रहा है, वो हर पीर का रोजा रखे सुन्नत का, ना उसमें कोई जश्न, ना जुलूस, ना झंडे, ना भंडे, कुछ नहीं। बेहतरीन सुन्नत पे भी अमल, अल्हम्दुलिल्लाह सवाब का भी काम, हर पीर को नफिल का रोजा रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है सच्ची मोहब्बत।
लेकिन साल में एक दिन खास करके खुराफाते करके लोगों को कहना कि जो ऐसा ना करे वो शैतान है, इब्लीस है, तो मेरे भाई ये तो नाइंसाफी हो गई ना। हाँ, लेकिन एक मिनट पहले ये बात सुनिए, जो अकीदे की बात आपने की है कि अगर जैसे मान लीजिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि सरकार न 10 मुहर्रम को पैदा हुई, न सरकार 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुई, बल्कि अगर मैं मान लूँ कि 7 रबीउल अव्वल को हुई है, 9 रबीउल अव्वल को, तो क्या मैं अकीदे से फिर यानी हट गया? हाँ, तो हम अकीदा आप उनके नहीं हुए ना। नहीं, वो हम अकीदा की बात अलग है, क्योंकि ये अकीदा नहीं, ये तारीख है, आप भले इसको समझें। अकीदा तो होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, अल्लाह के नबी, एक मेरे भाई नबी है ना दीन इस्लाम में जी, वो मेरे भाई नबी हैं, ये हमारा अकीदा है ना। हाँ बेशक। तो नबी जो पैदा हुए हैं, किस दिन पैदा हुए हैं, ये भी तो मेरे भाई अकीदे में आएगा, या इसको आप उसमें कह देंगे फुरूरी मसाइल है? देखो, नबी को नबूवत मिली, उसको नबी मानना ये अकीदा है, उसकी तारीफ नबी की हर चीज को मानना ये हमारा अकीदा। नबी की जात, सिफात, तालीमात सब कुछ अकीदे में आएगी। हाँ, वो जात, सिफात, तालीमात ये अलग चीज हो गई, लेकिन इस दिन में नबी है जब तारीख में आए, तो अगर तारीख में, क्योंकि आज तो आए नहीं, 2-4 साल का मसला तो है नहीं, हमको 1400 साल। तो यही तो कह रहे हैं, इतना इख्तलाफ है तारीख की पैदाइश में, लेकिन सब लोग मानते हैं कि 12 रबी अव्वल को अल्लाह के नबी की वफात हुई। ये तो सभी लोग मानते हैं ना। हाँ, ये मानते हैं। तो आला हजरत ने खुद मेरे भाई कहा है अल मलफूज में कि अल्लाह के नबी की जो वफात थी वो 12 रबी अव्वल को हुई थी, लेकिन इस दिन मतलब वो गम है, तो गम हम नहीं मना सकते, क्योंकि शरीयत में जो गम है वो खाली मतलब अगर कोई मना सकता है तो 3 दिन, और अगर बीवी है तो वो अपने शौहर का गम भाई को मनाएगी, ठीक है, 4 महीना 10 दिन। हेलो। चलो वो तारीख की बात आप थोड़ी, मैंने आपको बताया कि तारीख में जब इख्तलाफ हो। अच्छा चलिए, तारीख भी हटा दीजिए, आप ये बता दीजिए ईद मिलादुन नबी मनाने की कोई सबूत है, दलील है? अल्लाह के नबी तो 2 ईदें छोड़ के गए ना, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, और एक मेरे भाई जुमा ईद है। उसके अलावा कौन सी ईदें हैं दिन में? तो बोलेंगे कि कुरान हदीस दूसरी ईद है, तीसरा भाई देखिए, त्योहार के एतबार से 2 ईदें हैं, इबादत के एतबार से एक ईद है। जो इबादत की ईद है वो है अल जुमा, और जो मेरे भाई फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, जश्न मनाने के दिन है, वो है 2, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, यानी कि ईद और बकरीद। लेकिन ये तीसरा जश्न मनाने का दिन जो है ईद मिलादुन नबी, जो माज़अल्लाह इजाद कर दिया गया दिन में, इसका क्या सबूत है? तो आपकी जबान से ये बात साबित होती है ना? भाई नेटवर्क में बोलिए जोर से। हदीस है, ये आप मानते हैं, क्योंकि हदीस में भी है ना क्या जुमा भी यानी ईद है ना? ये हुक्म ईद है इबादत के एतबार से, ये कोई मेरे भाई फेस्टिवल नहीं है। क्या जुमे वाले दिन हर कोई नया कपड़ा पहनता है, सेवैयां बनाता है, छुट्टी करता है, एक दूसरे के वहाँ मिलने जाता है? ऐसा नहीं है ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फेस्टिवल की अलग ईद होती है, फेस्टिवल है दीन इस्लाम में 2 होती है, और जैसे ईद मिलादुन नबी की मेरे भाई बकायदा मेरे भाई छुट्टी होती है, सरकार ने छुट्टी दे दी है, जलसे जुलूस की परमिशन है। हाँ भाई मेरी अम्मी मेरे को थोड़ा बुला रही है, मैं इंशाल्लाह आपसे बाद में बात करता हूँ, फारिग हो गया। ओके, अस्सलाम वालेकुम।